ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسم الگ سلگ کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا، کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا، ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب باقی سب کچھ ہے۔ جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال النصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال النصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال النصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر پورے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑتی جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دی تھی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال النصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے، اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جبیریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا، بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا۔
मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज में होता गया। उसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके और इमामा के दरमियान किसी खास नौयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब उसे यकीनन इमामा की अरशद के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम अज़ कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। उनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने उसे प्रपोज किया था। उसे इमामा की जुर्रत पर कुछ हैरानी हुई थी, क्योंकि कम अज़ कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद अभी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? इमामा ने उस दिन उससे पूछा था। उसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। उसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? उसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे ये तय करना भी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बखुद उसे देखने लगा। उसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने उसे गुमसुम देखकर पूछा। वो एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बेइख्तियार कहा। यह सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी कर सकता हूं। उसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आते देखी। मैं हाउस जॉब खत्म करने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भेजूंगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूं? जलाल उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूँ, उसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस तरह आपके आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें उनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हलू की आवाज पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने उसी बेढंगी हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़की से मिलवाता हूं तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूं, पहले भी मिल चुका हूं। बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सालार को और एक नजर उसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए उसे देखा। ये तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नजर तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहां है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए। तो इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजर झुकाकर बात करना सीख लेता, खास तौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर आपको जाती तौर पर नहीं जानती।
उसने उसी रूखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा, चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल की स्टूडेंट होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। मेरे सामने कोई भी मर रहा हो मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूँ। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को हौले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुस्तहिक थे, एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम नहीं आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तिदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहां तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूं आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूं? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और फिर मैं जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूँ। सालार ने अजीब अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा। वो आपको आपकी खुसूसियत के बारे में सही बताएगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो उसे जिज्ज करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूं मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाएं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंह फट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना बैल मुझे मार के मुतरादिद था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूंगा। इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ, और उसने इमामा को यह जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इस तरह कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे उस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ, इमामा ने एक नजर उसे देखा और एक बार फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अकल से पैदल है।
मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुझे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की, तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने उन दोनों का, न उन्हें बात करने की तमीज है, न लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो, कोई जरूरत नहीं इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें नहीं आती। कम अज कम इस बारे में जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। इमामा ने एतराफ करने के अंदाज में कहा, मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी काबिल और नामवर डॉक्टर, नाकाबिले यकीन। वसीम ने तबसरा किया, अब कम से कम तुम इस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतजाज किया, मैंने इसलिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे।